Hello, this is Preet Kamal, and I'm a lecturer at Mehran Polytechnic College, Jalandhar. Today, I'm here to share with you the subject details of computer programming using C language. But before starting with the details of the subject, I would like to share an important information about the Mission Fateh, a campaign run by Captain Amrinder Singh, who is the Chief Minister of Punjab. And in the Mission Fateh, the main precautions that we have to take care of in this pandemic situation are to wash our hands regularly, to use sanitizer if we are going out of our house. Then, along with that, we should wear mask and maintain the social distancing rules so that we could come out of this pandemic situation of COVID-19 as early as possible. So let's move on to the subject. As you all can see on my screen, it is related to the C language. That is how the C language is very much related to the English language. So for learning the C language, the first thing that we need is, as we all know, that if we need to learn the English language, it is very much similar to that. As we all know that you can see here that when we need to learn the English language, what a child does or what a student does is, first of all, he or she has to learn the alphabets. Then after, while learning the alphabets, the words are being made, and then after, when we learn to make the words, then we make sentences, and in the last we can make the paragraphs and all these things that we could make. Similarly, when we talk about learning in C, then also there are some alphabets, some digits, and some special symbols that are the basics of C language that we need to learn initially. Then after, when we know that what kind of alphabets, how many number of digits, and what kind of special characters are being utilized in the C language, then we could learn about the constants, variables, keywords, and all these things which are related to these alphabets and the basic things. Then after learning these two basic things, we will turn to the instructions. When we know what the keywords are, when we know how the variables work, when we know how the constants are being utilized in the C language, then we will be able to make the instructions. And whenever we will be able to make the instructions, then the sequence of instructions is called a program. So it is very much simple for a person to learn C. It is as simple as learning the English language. So if I will talk about the character set, that means what kind of characters are being utilized, as we have already discussed, that the basic of the C is the alphabets, the digits, and the special characters that are being utilized in the C language. So the character set of C has these alphabets, digits, and the symbols. That is, it is having the uppercase letters from A to Z, the lowercase alphabets from A to Z, the digits from 0 to 9. All the digits from 0 to 9, these are some special symbols like semicolon, colon, question mark, epsilon, and at the rate, hashtag, percentage, ampersand, and many more, right? All are given over here. So these are some special symbols that could be utilized in the C language in one or another way, right? Then after, the white spaces. White spaces means the tab, the space, the single space, the tab, the new line, all these things. These are all included in the basic character set of the C language. Then I hope you all are clear with this character set, right? So let's now move on to the keywords and identifiers. So when we talk about the keywords and identifiers, then it is the next step. As I have already discussed in this blog, that first of all, we need to know what kind of alphabet is used and special symbols that are used in C, and then after we will move to the constants, variables, and keywords, right? So we are done with the alphabets. We know that which kind of alphabets, that is from capital and small A to Z, the digits from 0 to 9, all the digits are included, and some special symbols that were given along with the spaces.
So next is the keywords and identifiers, the next step. So what do you mean by, first of all we will discuss the keywords. Keywords are basically the predefined words that already exist in the C language program, or we could rather say in the uh, programming software that we have developed, that has been developed for the programming in the C language. So keywords means the predefined words जो पहले से ही हमारी C language के सॉफ्टवेयर के अंदर हैं और उन्हें रिजर्व किया गया है कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेशल पर्पसेस, कुछ स्पेशल काम को करने के लिए, और उन्हें हम आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते. कीवर्ड्स जो है वो स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं, राइट. तो आइडेंटिफायर्स जो है दे आर समथिंग डिफरेंट दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन द कीवर्ड्स. तो द मीनिंग ऑफ अ कीवर्ड, जो भी कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में है उनका मीनिंग ऑलरेडी सी कंपाइलर को पता है और उसका मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना हम चेंज कर सकते हैं, ना ही ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसको कोई भी चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं. और जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उनका ऑलरेडी एक मीनिंग है, तो उसको हम लोग अब वेरिएबल के नेम के लिए या किसी और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग नहीं यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इन द रियल वर्ल्ड वी ऑल नो दैट इफ, एल्स एंड व्हाइल, ये सारी चीजें जो है इन सबका अपना एक मीनिंग है. क्या आपने कभी सुना है कि किसी का नाम रखा हो व्हाइल, किसी का नाम रखा हो इफ, किसी का नाम रखा हो एल्स? नो, नहीं होता है ऐसा, राइट. बिकॉज हमें पता है कि ये सारे, बिकॉज इज ऑल्सो अ कीवर्ड, यू कैन से जैसे हम प्री डिफाइंड वर्ड्स जिसको हम लोग अपने तरीके से अपने बेनिफिट के लिए किसी और तरह से यूज नहीं कर सकते हैं. इनका अपना एक मीनिंग है और उन्हें उसी तरह से हमें यूज करना पड़ेगा. अगर मेरा नाम इफेल्स नहीं रख सकते हैं, आपका नाम वाइल्ड डू नहीं रख सकते हैं, राइट. बिकॉज हमें पता है कि ये सारी चीजें जो हैं दे आर ऑलरेडी डिफाइंड, इनका ऑलरेडी एक नाम, एक मतलब, एक मीनिंग है. सिमिलर इज विद द कीवर्ड्स, कि वो कंपाइलर को पता है कि ये जो सारी चीजें हैं 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली, ठीक है. तो कंपाइलर नोज अबाउट दोज कीवर्ड्स और उनको उनका मीनिंग पता है, तो हमें उन चीजों को एज इट इज यूज करना है जैसे उनका मीनिंग हमें बताया गया है. ओके. So these are some keywords. There are 32 keywords that are being given here: auto, double, break, else, int, struct, long, switch, case. तो ये सारे हैं, इन सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं. वो हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम उनका मीनिंग जो है उसको सीखते चले जाएंगे कि उनका क्या मीनिंग है, right? So I hope you all are clear with the keywords. Next, move on to the identifiers. Identifiers means some particular names जो हम किसी प्रोग्राम एलिमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर, हम कोई नंबर सेव करना चाहते हैं तो हम उसे डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते हैं. वी नीड टू यूज सम अल्फाबेट फॉर दैट. तो हमें उसमें कोई अल्फाबेट या कोई नाम ऐसा लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस नंबर को, सपोज मैं चाहती हूँ 2 नंबर्स को ऐड करना, आई वांट टू ऐड ए एंड बी, राइट. तो अब ए और बी तो डायरेक्टली ऐड हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है. ए के बीच में भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, बी के बीच में भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, राइट. तो अब उन दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं अपने सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर. इसमें कुछ एक लिमिटेशन है कि इसमें हम डायरेक्टली नंबर्स नहीं लिख सकते, या लिखते भी हैं तो उनको चेंज करना है. अगर हम लोगों ने, अगर हम लिख भी देते हैं नंबर डायरेक्टली, तो उनको अगर हमने चेंज करना है तो बार बार उस नंबर को चेंज करना पड़ेगा, या जितनी बार भी उस प्रोग्राम में आ रहा है उतनी बार उतनी जगह पे उसको चेंज करना पड़ेगा. सो बेटर ऑप्शन इज कि हम एक वेरिएबल लेते हैं. एक वेरिएबल मीन्स जिसके अंदर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं या किसी भी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. तो वो जो एक एलिमेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं हमारी कोई भी डेटा को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए. जैसे मान लो मेरे पास एक
एक बॉक्स है, उस बॉक्स को मैं यूज कर रही हूँ, मेरा कुछ जरूरी सामान है उसको रखने के लिए, राइट। तो अगर मैं उस जरूरी सामान को एज इट इज बाहर रख दूंगी तो वो प्रॉपरली उसका यूज जो है वो नहीं हो पाएगा, या मैं उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी, राइट। या हो सकता है वो खराब हो जाए, उस पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से, तो सिमिलरली जो आइडेंटिफायर्स हैं वो कुछ नाम हैं जो हमने स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम एलिमेंट्स को दिए हैं। वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वो फंक्शंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और उनके नाम के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, लेकिन कोई स्पेस जो है वो हम लोग उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको अगर हम बात करें, तो जो आइडेंटिफायर्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। They are elements of a C program which represents a value. It's like a container. So they work like a container that holds a value in it. एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू है, कोई चीज का मतलब है, कोई मीनिंग है उसके अंदर, राइट। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं टू टाइप्स में, दैट इज फर्स्ट वन इज द कांस्टेंट्स एंड द सेकंड वन इज द वेरिएबल्स, राइट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट जैसे हम पता है एक चीज है कांस्टेंट, जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं के इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मींस एक प्री फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग चेंज नहीं कर सकते। तो मैनुअली रिटर्न हम उसको मैनुअली जो प्रोग्रामर है वो उस चीज को लिख सकता है प्रोग्राम के अंदर, बट उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग जब प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पे हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे एग्जांपल कि हम एक 7 वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए व्हाट आई हैव टू यूज इज आई हैव टू यूज सम वेरिएबल, आई हैव टू यूज सम अल्फाबेट फॉर स्टोरिंग दैट वैल्यू दैट विल वर्क एज अ कंटेनर फॉर दैट वैल्यू। तो 7 x इज इक्वल टू 7 लिखते हैं, दैट मीन्स कि x की वैल्यू 7 है, x जो कंटेनर है उसके अंदर 7 वैल्यू पड़ी हुई है। बट अगर मैं बोलूँ 5 इज इक्वल टू 7, 3 is equals to 4, 3 is equals to 4, not possible, because 3 का अपना मीनिंग है, 4 का अपना मीनिंग है, 3 को 4 को हम असाइन नहीं कर सकते एक दूसरे को, तो उसके लिए हमें कोई और चीज चाहिए, कोई अलग चीज चाहिए, कोई अलग एलिमेंट चाहिए, कोई अलग वेरिएबल चाहिए, कोई अलग कांस्टेंट चाहिए, कुछ भी एक अलग चीज चाहिए, एक अलग एलिमेंट चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। और अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, प्री फिक्स्ड है, तो उसे हम कांस्टेंट बोल देते हैं। अगर हम उसकी वैल्यू को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं, जब हम उसमें कोई वैल्यूज को एड अप कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या उसको आउटपुट की एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम उसमें से कोई वैल्यूज को निकाल सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं, तो हम उसे वेरिएबल बोल देते हैं। अदर देन दैट, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसा वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो वैल्यू है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ बेसिक कांस्टेंट्स। प्राइमरी कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास और सेकेंडरी कांस्टेंट्स होते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट्स में हमारे पास है इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इन रियल को हम लोग फ्लोट कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स का क्या मतलब है? जिसमें हमारी वैल्यूज हम इंटीजर्स में कंसिडर करते हैं। इंटीजर्स मीन नंबर्स फ्रॉम पर्टिकुलर, फ्रॉम से 0 to 65536। This is basically the value of the integer variables या integer constants जो हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं। अगर हम अनसाइंड वैल्यूज यूज कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज सारी यूज कर रहे हैं, तो इंटीजर की जो रेंज होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, दैट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 65536। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें अनसाइंड और साइड दोनों वैल्यूज की, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं, देन जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू होगी फ्रॉम 3 to 6 7। One second, I just forgot the value. It was that it was related to the integer constants। तो integer constants हैं हमारे, तो उसकी वैल्यू है 3 to 768, फ्रॉम -3 to 768 अप टू +3 to 768। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है, 2⁻16 जो है हम इसमें कंसिडर करते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लोट वैल्यूज और द रियल कांस्टेंट्स, तो उसमें हम लोग बात करते हैं डेसिमल वैल्यूज
की, मतलब 5.27, 3.01, 4.75 or 15.23, something like this, anything in the floating values, right? So for example, if we need to calculate the simple interest, right, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. तो P की वैल्यू हो गया प्रिंसिपल, वो कोई भी वैल्यू 10,000, 1 लाख, whatever can be there. Then the rate of interest जो है वो 20%, 10%, 5%, 4%, 2.5%, कुछ भी हो सकता है. Similarly, time can be 1 year, can be 6 months, it can be anything, right? So whenever we calculate the whole thing, then it is possible that P and R and T all are in integer values. No, nothing is in float values. But when we calculate the P into R into T and then we divide it by 100, then what the actual answer, the simple interest that has been counted, it is not always necessary that it should be in integer values. So it is possible that the answer could be in the decimal value. So to store that particular thing, we need some real constants, and that is called real constants or float constants बोलते हैं इनको. तो वो float constants या real constants जो है हमारे, वो numeric constants हैं. थोड़ा सा difference है सिर्फ कि इसके अंदर decimal values जो है उनको हम लोग consider करते हैं. The last one are the character constants. So character constants are basically that kind of constants जो एक single character को represent करते हैं. For example, if we need to write a single alphabet A, then we need to write it in a single inverted commas, and then we could write a name. Say my name is Aman, for example, right? तो अगर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा तो उसमें हम अमन लिखना चाहते हैं, तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के अंदर we could write it like single inverted commas में A, single inverted commas में M, then A and again, and then we can write that name or whatever it is, right? अमन, अजय और जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, whatever it is, ठीक है, तो वो आप उसमें लिख सकते हो. तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे यूज होते हैं, तो उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं. दैट मीन्स कि ये कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमें एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक हमारे पास एक हमें कैपेबिलिटी देते हैं कि हम लोग अपनी हर तरह की वैल्यू को, चाहे वो नॉर्मल टीचर्स वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, चाहे वो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, चाहे वो हमारे कैरेक्टर्स मीन अल्फाबेट्स हैं, तो सिंगल 1 by 1 हम लोग अल्फाबेट्स को, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को और इंटीजर्स को हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. देन आफ्टर कम्स द सेकेंडरी कांस्टेंट. सेकेंडरी कांस्टेंट्स आर array, pointer, union, structure, enumeration. So that we will discuss later whenever their topic will come, because at this particular point we need not to discuss about these constants. So main thing was the constants are there, primary and secondary constants are there, and we are having numerous of options in which way we can use our these constants, right? And then after in the terms of identifiers, we were having the constants and variables. So we are discussed with the constants. Constant means the constant value that will not be changed during the program execution. And now comes the variables. Variables जो हैं वो simply एक नाम दिया गया है, नाम से क्लियर हो रहा है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है. ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो सिंपली एक मेमोरी लोकेशन को नाम दिया गया है, जो कि एक कंटेनर, एक प्लेस होल्डर की तरह काम करती है टू स्टोर द डेटा, और इट मे हेल्प टू थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज अ कंटेनर फॉर द वैल्यू. जैसे कि हमने ये लिखा कि ये वैल्यू, इसका नाम है ए, तो इसका जो एड्रेस है वो 1566 है और इसके अंदर हमने 100 वैल्यू को स्टोर किया है. तो इन वेरिएबल्स के पास भी ऑप्शंस होते हैं कि वो जितनी मर्जी, मतलब अप टू फ्रॉम राइट फ्रॉम 0 अप टू 65536, मतलब 65,536 तक की वैल्यूज को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी बाइट्स का डेटा जो है वो लेता है, राइट? उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका वेरिएबल जो है आपकी वैल्यू को स्टोर कर सकता है. जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सिक्यूशन हम लोग उसमें कोई वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई वैल्यूज निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम, राइट?
तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द रूल्स, अगर हम बात करें रूल्स की कुछ कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं दे आर बेसिकली मोस्टली यूज्ड कैरेक्टर्स इन द सी लैंग्वेज प्रोग्राम, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। क्यों सबसे ज्यादा यूज होते हैं? क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। आपने कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना है, जैसे हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा, एल्गोरिदम्स देखे, तो उसमें अगर कोई भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेमेंट क्या है कि इनपुट और आउटपुट की कुछ वैल्यूज होती है, राइट? तो उन्हें कैलकुलेट करने के लिए या जैसे कंटेनर्स जो है वो हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं। दो वैल्यूज को ऐड करना है, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, तीन वैल्यूज के बीच में लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जो भी हमें काम करना है, कोई भी चीज कोई भी फंक्शन हमें परफॉर्म करना है, कोई भी प्रोग्राम हमें लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास न्यूमेरिक्स होने चाहिए, हमारे पास डिजिट्स होने चाहिए, वो इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। वो इंटीजर वैल्यूज होंगी तो हम इस तरह का कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन वो इंटीजर वैल्यूज हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और वेरिएबल का कुछ नाम रखना पड़ेगा। वो नाम आप एक्स वाई जी ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी रख सकते हो, उसका नाम आप अपने नाम पे रख सकते हो, जिसके मर्जी नाम पे रख सकते हो आप, लेकिन उस नाम के लिए कुछ रूल्स हैं। वो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम वेरिएबल का नाम जो है उसको सिलेक्ट कर पाए। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जब हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें एरर देगा, तो हमें एरर नहीं चाहिए। सो दैट इज वाई कुछ रूल्स हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो नाम है आपके वेरिएबल का वो बिल्कुल सही होगा, तो आपका प्रोग्राम भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। तो फर्स्ट रूल इज कि उसमें कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, लोअर केस लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल के नाम में कोई भी चीज कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपके वेरिएबल का वो या तो कोई अल्फाबेट कोई लेटर हो सकता है, अपर केस हो लोअर केस हो डजंट मैटर, या फिर वो अंडरस्कोर हो सकता है। उसके अलावा किसी किसी भी और कैरेक्टर से, किसी नंबर से या किसी और चीज से हम लोग या स्पेस से हम लोग अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड रूल, usually only first 32 characters are significant, that means कि मैक्सिमम जो वेरिएबल का नाम है वो 32 कैरेक्टर्स लंबा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का नाम रख दिया एलिफेंटा केव्स 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो 32 से ज्यादा नहीं है। यू कैन काउंट कि एलिफेंटा केव्स एंड ऑल दीज थिंग्स, okay, other than that you don't have to write anything like this। इतना लंबा आपको वेरिएबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। you can simply write a b c a_1 b_2 c_3 whatever it is like this। you could make it simple, you could make it shorter। और लेकिन एक चीज याद रखनी है कि एक तो जो है आपका लेटर्स जो आप यूज कर रहे हो, अगर आप वेरिएबल के नाम में अपर केस लेटर्स यूज कर रहे हो तो पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपर केस लेटर्स ही यूज करने पड़ेंगे। अगर आप लोअर केस यूज कर रहे हो तो लोअर केस ही यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज पहले ही बताया है आप लोगों को कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आप कहीं पे स्मॉल कहीं पे कैपिटल लेटर अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हो तो वो कंसिडर नहीं होगा, तो उसको अलग तरीके से माना जाएगा, अलग तरीके से जो कंपाइलर है उससे डिफरेंट वर्ड्स मानेगा एंड इट मे जनरेट एन एरर, राइट। देन आफ्टर देयर नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है दैट इज देयर कैन बी नो एम्बेडेड ब्लैंक्स। तो उसमें आप लोग ब्लैंक या स्पेस ऐड नहीं कर सकते हो वेरिएबल के नेम में, अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्पेस नहीं डाल सकते हो। देन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। ऑलरेडी जैसे मैं तुम्हें डिस्कस किया आप लोगों से कि आपने जब भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स का नाम आपने लिखना है तो
उसका नाम कीवर्ड जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ऑलरेडी आपको कीवर्ड दिखा चुकी हूँ, 32 कीवर्ड्स जो ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर है, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है, उसे आप अपने वेरिएबल के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। देन last one already we have discussed, they are case sensitive, so we should take care of all these things while choosing the variable name. So it could be as short, simple as we need to calculate, as मैंने example लिया कि simple interest calculate करना है, तो simple interest के लिए we could write SI for the output, then P, R, T as the inputs, and 100 we don't have to mention in the variable name because 100 is a constant and we will use it as it is in the calculations itself, right? So we will not use that 100 into the variable name. तो बाकी देन बाकी जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आगे, हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे छोटे छोटे, तो उसमें और चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी, कैसे हमने स्टार्ट करना है, कैसे हमने एंड करना है, क्या चीज पहले लिखनी है, क्या चीज बाद में लिखनी है. तो आई विल टेल यू द स्टेप्स दैट हाउ टू मेक अ प्रोग्राम, right? So I hope it is all clear to you. If there will be any doubts, then we will definitely discuss them in the live sessions. So till then, thank you so much.